सिंगिंग के साथ मैं सिंगिंग के साथ नहीं बोलेंगे 9.26 सुना देगा माइक पे। He must not understand Hindi. Yeah, alright. Then you need to But Gujarati, yes. practice the shloka and say on the mic. Practice the shloka and say on the mic. Then I will say that you are in grade 2. Yes. And you are awesome. Shloka, you will learn. It's such a kind of poem, you know. But Hare Krishna. Let's start Kirtan. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamine Namine Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
राम राम हरे हरे
Hare Krishna everyone. छोड़ छोड़ दो प्लीज, पीछे हो जाओ पीछे. Prabhu, Abhiraj. Oh, can you see this like it's okay? If Alright. something, if kids move it, just see that it's How is everyone? Yeah. Good. Alright. So last time, अच्छा पहले कोई है जो फर्स्ट टाइम आए क्लास में? First I'll let me do the prayers and then we'll have the introduction. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूरिश्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. मुखं करोति वाचालं मनोमयं गायते गिरिं कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं. All right. Anyone for the first time here? Hare Krishna. Can you pass on the mic? So it's a small, just one-liner introduction. Your name, your occupation, and where you belong to, and what are your expectations from the workshop? My name is Rajesh. I am from Punjab. Village is Bias, district Amritsar. Amritsar. Yeah. Yeah. And learning new things, no expectation. Nice, good. Thank you. Welcome. Anyone else? No? All right. So last time क्या किया था हमने? क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? भगवान है या नहीं? Exactly. So does God exist or not? तो हमने इस पे काफ़ी डिटेल में चर्चा की थी. So before we do the recap, let's set the mood. I'll place this small video. Yes, kids can go to kids class, or if you want to see the video, and after watching the video, maybe you can go. Yeah, it's an interesting video. वैसे कुछ है नहीं, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ही है. It's just a animation. There are no dialogues. He is going to get water in a desert. Yeah. So there is a sign that you can go there, but he wants to go, and someone is stopping him from going there. But he's not stopping. He just wants to go there. Whatever he's seeing. और उस हैंड ने वो मिटा दिया. कुछ तो बनाया उसने. एक बूंद से खुश हो गया वो.
Right? So that hand which was stopping was God's hand, right? But he is not ready to look at that. Huh? What else? और कुछ comment पे realization on that? Anyone wants to share? We want to make our own way, right? हमें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है. We don't stop and look कि क्या सिग्नल मिल रहे हैं, भगवान हमसे कुछ बोलना चाह रहा है. हमें जो दिख रहा है हम बस उसी को बाय हुक और क्रुक करना चाह रहे हैं एंड उसमें फिर खुश भी हो रहे हैं चाहे एक बूंदी आ रहा है. राइट? सो या किड्स कैन गो टू किड्स क्लास. जो 9 या 10 साल से ऊपर है वो बैठ सकते हैं यहाँ पे. ऑलराइट. सो हमने देखा था लास्ट टाइम और हम इस टॉपिक पे आए कैसे थे, डज गॉड एग्जिस्ट पे. वाई वी केम टू दिस टॉपिक ऑफ वाई does God exist or not? Because anyone remembers? हाँ, बट उससे पहले कि हम इस टॉपिक पे कैसे आए कि does God exist? Because permanent, yeah. So we saw that. Except Lord's love. हाँ, Lord's love. Because we talked about love, right? SAC. So we were searching the goal of our life is परमानेंट हैप्पीनेस. हमें क्या है, टेम्परेरी हैप्पीनेस आती है जाती है, बट व्हाट वी वांट इज परमानेंट हैप्पीनेस. एंड टू अचीव दैट परमानेंट हैप्पीनेस द फॉर्मूला इज SAC, बिकॉज वी आर सर्चिंग द हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस. वी सॉ दैट दिस इज, भगवद गीता में क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण कि दिस इज दुखालयम शाश्वतम. सो वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन दुखालयम, राइट? एंड A से क्या था, एक्सेप्टेंस. दैट विल learn these kind of gratitude, integrity, these kind of principles we should accept if we want to be happy. And the third one is connect with the Supreme. Why we want to connect with the Supreme is because we discussed that our heart has a lot of capacity to receive and to give love. और वो love हमें finite लोगों से नहीं मिल सकता. So for that we have to connect to the infinite. And who is that infinite? Does that even exist? That was the topic. So then we discussed why do people believe in God? भगवान के पास क्यों जाते हैं लोग? Abbreviation थी एक उसकी, याद है? Not you. If no one answers, then you can answer. Some go out of fear. Yes. So fear was you, unknown fear. Dust. Yes. So T say desire and U say unknown fear. S से क्या था? Social pressure. Good. Social pressure. And T say traditions. Blind following of the traditions. So here we discussed that in detail. Recap is very important. भूल जाते हैं हम. Right? So these were the reasons, common reasons because why we go to Bhagwan, God, huh? There's also duty, love. Yeah, this is the same, right? Out of social pressure is out of duty. So we feel that obligation to go to God. So that is on the level of duty. In Bhagavad Gita, इसलिए dust मैंने नहीं बनाया, मतलब ये जो भी slide बनाई है just to make us remember. But in Bhagavad Gita, there are 4 levels. On the level of fear, जो सबसे बेसिक लेवल होता है, फियर, देन ड्यूटी, देन फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव. ये 4 लेवल हैं. आर्थो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी. सो हर तरह का लोग आते हैं भगवान के पास एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. इवन इफ यू हैव डिजायर, गो टू लॉर्ड, नॉट अ प्रॉब्लम. फियर से भी जा रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट द बेस्ट. या सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड. देन वी डिस्कस्ड कि डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है, उसका फॉर्मूला क्या था, उसकी एब्रीविएशन सी लॉर्ड. यस. सो सी से let others answer. Creation. So the creation is there. There must be a creator, right? Behind every creation there is a creator. ये माइक भी है, इसका भी कोई क्रिएटर होगा. जो फोन है मेरा, उसका भी कोई क्रिएटर होगा, सैमसंग या एप्पल, isn't it? So every creation has a creator. Good. Next, every
लॉ जो भी बना है उसके पीछे हैज अ लॉ मेकर. सॉरी, या यू कैन टेल द नेक्स्ट. ऑर्गेनाइजर. सो जितनी भी ऑर्डर एंड डिजाइन है हमारे, जो भी ये विल डिस्कस दैट टुडे, वी हैवंट डिस्कस दैट. सो वी डिस्कस्ड ओनली सी एंड एल. एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर. और इसमें हमने किसकी एग्जांपल देखी थी? बिग बैंग और डार्विन थ्योरी, इजंट इट? उसको हमने धज्जियां उड़ाई थी ना उसकी, राइट? सो वी सॉ दैट. एंड लॉ में हमने देखा था कि जो नॉर्मल हमारे ट्रैफिक लॉज हैं उसमें हमारे लॉज लगते हैं, और जो सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो हाउ कैन वी से दैट देयर इज नो लॉ बिहाइंड दैट? दे आर ऑल्सो मूविंग अंडर सम लॉ, राइट? एंड टुडे विल कवर दीज टू, ऑर्गेनाइजर एंड डिजाइनर. एंड एवरी डिमांड एंड अर्ज हैज अ फुलफिलमेंट. Yeah. So let's see. Right. So order and or you can say organization के पीछे एक ऑर्गेनाइजर होता है. फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक फॉरेनर जो है वो ऑफिस में आया हमारे सरकारी दफ्तरों में. तो हमारे सरकारी दफ्तर में आके थोड़ा उसने वहाँ पर दिन स्पेंड किया, और उसके बाद वो जब निकला शाम को वहाँ से, तो उसने बोला, कहता भगवान एग्जिस्ट करता है. तो लोगों ने बोला क्या, ऐसे कैसे बोल रहा है भगवान एग्जिस्ट करता है सरकारी दफ्तर में से निकल के? बोल रहा है यहाँ पर कोई काम ही नहीं करता, फिर भी ये इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे चल रही है ये? भगवान ही चला रहे होंगे इसको, राइट? तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? कुछ भी ऐसे ही नहीं आ गया है. सोचो हमारे घर में वो सिंटेक्स का टैंक लगा होता था ना इंडिया में, तो वहाँ से पानी आता था. तो सोचो अगर उसमें एक भी होल अगर हो जाता तो वो पूरा टैंक हमें रिप्लेस करना पड़ता है, इजंट इट? एंड लुक एट द क्रिएशन, लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लाउड. क्लाउड में पूरा एरोप्लेन निकल जाता है उसके अंदर से, इजंट इट? तो वो लीक करता है, ऐसे पता चले एरोप्लेन निकला क्लाउड में से, वो लीक करने लग गया, वो बारिश होने लग गई. ऐसा नहीं होता ना. लीक प्रूफ क्या डिज़ाइन है, सोचो. ये ऐसा डिज़ाइन हमसे तो बनता नहीं है. पता है यूएस ने ट्राई किया था क्लाउड्स बनाने का. एक्चुअली दे स्पेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मेक क्लाउड्स, एंड दे फेल्ड मिजरेबली, एंड दे क्लोज दैट प्रोजेक्ट फाइनली बिकॉज इट वाज नॉट वायबल. एक होता है ना MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सो दैट वाज नॉट वायबल. कि पानी को उन्होंने सोचा कि और भी तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के करने के, तो क्लाउड उनसे नहीं बना बट बहुत वो था, एक्सपेंसिव था वो. So these are the designs of the Lord. These are the creation of the Lord which we cannot even think of. हमसे नहीं बना क्लाउड, राइट? सिट्रिक एसिड आपको पता है? सिट्रिक एसिड अगर स्किन पे गिर जाए तो उसमें स्किन बर्न हो जाता है, राइट? इरिटेशन हो जाती है. बट लुक एट द पैकिंग. लेमन, कितनी अच्छी पैकिंग है. उसमें से करता है कि अच्छा लेमन उठा के लाए, अरे लीक कर गया. नेवर. दिस इज अ डिज़ाइन, राइट? So every company has an organizer. That's why. And look at the organization and design in various species. जिराफ, आपको पता है जिराफ की जो हार्ट होता है 11 किलो का हार्ट होता है, और 2 फीट लॉन्ग हार्ट होता है. क्यों होता है इतना बड़ा हार्ट? हाँ, टू पंप. इतना बड़ा नेक है उसका, तो यहाँ से हेड ब्रेन तक ब्लड पहुँचाने के लिए, जैसे हमारे इंडिया में मोटर नहीं लगाते थे 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे पानी के लिए, इट्स जस्ट लाइक दैट. कि वो हार्ट इतना, उसका 11 किलो का हार्ट, टू पंप दैट ब्लड सो दैट इट रीचेज द ब्रेन. अब क्या होगा जब वो पानी पीने के लिए झुकेगा, तब क्या होगा उसके साथ? कैन यू इमेजिन? फट जाएगा उसका ब्रेन. पर फटता है? पानी पीने के लिए जाता है, वो फटता नहीं है ब्रेन. लुक एट द डिज़ाइन. उसके यहाँ पर, उसके नेक पे 1 वे चेक वॉल्व होता है. तो जैसे ही वो झुकता है, एक स्पंजी टिश्यू होता है, तो वो बंद कर देता है फ्लो उसका, और जैसे ही वो गर्दन फिर अपनी ऊपर करता है, वो फिर से खोल देता है, वो फिर से ब्लड फ्लो होने लग जाता है. लुक एट दैट डिज़ाइन, राइट? इट्स नॉट नॉर्मल. ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. यानी तो ये क्या है? स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज में हम देखेंगे. हमिंग बर्ड आपको पता है एवरी ईयर 1000 माइल्स इट गोज 1000 माइल्स, और अपने विंग्स को फ्लैप करता है 75 टाइम्स पर सेकेंड. फिंगर को ट्राई फ्लैपिंग योर फिंगर 75 टाइम्स इन 1 सेकेंड. इट्स नॉट पॉसिबल. कोई मशीन नहीं बनी है. इट जस्ट 3 grams.
6 million wing beats and it just weighs 3 grams. So ऐसी ऐसी स्पीशीज बनी हैं. So how? सीड में देखा, कभी सीड में फ्रेग्रेंस नहीं होती, लेकिन वही रोज में फ्रेग्रेंस है. कहाँ से आई वो फ्रेग्रेंस? लुक एट द डिजाइन. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि हमें भगवत गीता की जरूरत नहीं है भगवान डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, वो टॉपिक है ही नहीं भगवत गीता में. जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक नहीं होगा. तो इसीलिए हमें अपनी नेचर, आसपास नेचर को देख के ही हमें पता चल जाना चाहिए कि भगवान एग्जिस्ट करता है. उसके लिए हमें कोई हाई फाई फंडे नहीं चाहिए. आपको पता है कोकोनट ट्री शेड क्यों नहीं देता? बड़ी कॉमन सेंस है. कोकोनट ट्री पे शेड नहीं होती, उसके नीचे बैठोगे तो पत्ते, उसके पत्ते ऐसे होते हैं ना, उसमें से धूप आएगी. बैठा तो उसका ये वाला नारियल टूट जाएगा, ऊपर से नारियल गिरेगा तो. Isn't it? So look at the order and design. Someone must have thought about it, isn't it? किसी ने कुछ तो सोच के बनाया होगा ना. एक आदमी जा रहा था तो उसने देखा कि यार ये क्या है, इतनी पतली सी बेल पे इतना मोटा वाटरमेलन. कहता क्या डिज़ाइन बनाया है ये, इतना बड़ा वाटरमेलन है और इतनी सी पतली सी उसकी वो है. तो ये बोल के वो चला गया. तो पेड़ के नीचे बैठा, बेनियन ट्री के नीचे, और सो रहा था वहाँ पर. उसकी आँख में आके वो बेनियन फ्रूट गिरा और उसकी आँख हर्ट हो गई. तो उसने बाद में सोचा कि यार बहुत अच्छा डिज़ाइन था वो. सोचो अगर वाटरमेलन वहाँ लगा होता तो क्या होता वो. राइट. सो दीज आर द थिंग्स. सो बहुत ही केयरफुली ये ऑर्डर बनाया गया है, ये डिज़ाइन किया गया है. राइट. और ये एनिमल, ये कैमल 8 दिन बिना पानी के रहता है और उसके बाद क्या करता है वो, एक गल्प में कितना ले लेता है? 130 लीटर्स इन 1 गल्प. और क्या है? ट्रांसपेरेंट आईलेट्स. ट्रांसपेरेंट आईलेट्स क्यों है उसकी? किसी को पता है? सैंडस्टॉर्म. हाँ, वो सैंडस्टॉर्म चलती है तो वो आंखों में ना जाए उसके. लुक एट द डिजाइन. लॉन्ग लेग्स ताकि नीचे से वो हीट ना आए उसको. किसने बनाया ये ऐसा डिजाइन? यस. और फिर अंदर ही सेड कि अगर आपके पास होते आप क्लास में सो रहे होते. हाँ, बड़ा अच्छा डिजाइन है. हमारे पास होते तो हम भी क्लास में सोते और पता भी ना चलता हमें. अभी टाइम नहीं, अभी तो 5 मिनट हुए हैं क्लास में, आधे घंटे बाद सोएंगे तो. सोचो ये इस लेडी का ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक में कि सबसे लंबे आई लैशेज हैं इसके. दिस इज़ वेरी रेयर डिजीज काइंड ऑफ अ थिंग. सोचो कि हेयर पे जो हमारा स्कल है उसमें हेयर ग्रो करते हैं, अगर हमारे आई लैशेज के हेयर ग्रो करने लग जाएं, हमारी आंखें ही ना खुलें. अपनी बॉडी में भी देखो डिज़ाइन, अल्टीमेट डिज़ाइन है. एटम का डिज़ाइन, लुक एट द डिज़ाइन ऑफ एटम. बीच में न्यूक्लियस और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी इतनी प्रिसीजन है और मैक्रो लेवल पे भी कितनी परफेक्शन है. मैक्रो लेवल पे भी यही हो रहा है ना, प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में और हमारी बॉडी के अंदर जो एटम्स हैं वो भी ऐसे घूम रहे हैं. अर्थ रोटेट कर रही है एक परफेक्ट स्पीड पे. अगर थोड़ी सी भी स्पीड ज़्यादा हो जाए अर्थ की तो क्या आएंगे? हरिकेन, साइक्लोन आने लग जाएंगे. और थोड़ी सी भी कम होगी तो क्या होगा? तो इतनी गर्मी हो जाएगी हम रह नहीं पाएंगे. राइट. सो इट इज़ डिज़ाइंड विद सच अ प्रिसीजन. हमारी आंखें, ये भी हमारे ईशोपनिषद में श्लोक है. आंखें, हमारा नाक, हमारा मुंह, हमारा पेट, इज ऑल. सो वी हैव ऑल दीज इन अ स्ट्रेट लाइन. एक ही लाइन में है. क्यों? कोई भी जैसे पिज्ज़ा आया तो पिज्ज़ा आया, पहले उसको देखोगे, फिर स्मेल करोगे, वाह, और फिर एंड देन विल ईट इट. सोचो हमारी आंखें यहाँ पर हों, उसके बाद नाक हमारा घुटनों में हो, तो पहले तो हम देखेंगे चीज़, फिर झुकेंगे और झुक के हम वो उसको सूंघेंगे. और टंग पीछे लगी हो, फिर पीछे मुड़ के खाएंगे. हो सकता था ना, बट नहीं. पूरा वेल थॉट है ये. एवरीथिंग इज वेल थॉट. आपने गाजर देखी है? गाजर को कभी काट के देखा है? कैसी होती है अंदर? आँख बनी होती है ना उसके अंदर. एंड इट इज़ गुड फॉर आईज. राइट. टमाटर देखा है? टमाटर को अगर काटोगे तो 4 चैम्बर्स हैं उसमें. हार्ट, इट इज़ गुड फॉर हार्ट. किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ लो, वो बोलेगा कि टमाटो इज़ गुड फॉर योर हार्ट. राइट. जिंजर इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव, स्टमक शेप है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम. वॉलनट की शेप कैसी होती है? ब्रेन. बेस्ट फूड फॉर ब्रेन.
So look at that design. It's not normal. Celery, it's good for bones. Avocado, in the shape of a womb. It is good for pregnant women. It's very good. Kidney beans. उसका नाम ही किडनी बीन्स है, तभी उन्होंने रखा है. किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछो, वो बोलेगा किडनी बीन्स, राजमा इज गुड, राइट. सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि इतनी सारी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं तो ये जस्ट ऐसे ही बना दी. इसके पीछे बहुत प्रिसीजन, बहुत एक गुड डिज़ाइनर, अ वेरी इंटेलिजेंट डिज़ाइन इज बिहाइंड दैट, राइट. विच दिस वी आर डिस्कसिंग इज साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, राइट. कुछ तो है ना, जो ये ऑटोमेटिक बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के पीछे कुछ तो है. एक कार बनाने के लिए कितनी कंपनीज लगती हैं, राइट. कहीं से वो व्हील आ रहा है, कोई वो बना रहा है, बियरिंग बनाने की एक अपनी फैक्ट्री है, वहाँ से वो बॉल बियरिंग आ रहा है, और तब जाके एक कार बनती है. नारद मुनि, एक स्टोरी सुनाता हूँ. एक कॉबलर और एक ब्राह्मण. कॉबलर होता है, आपको सुनानी है? ओके, सुना दो. प्रॉपर आती है अच्छे से? हाँ, तो रहने दो. सो एक बार नारद मुनि इज अ एस्ट्रल मैन, है ना. वो ट्रैवल करते रहते हैं तीनों लोकों में. तो वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको एक ब्राह्मण मिला. तो ब्राह्मण ने बोला कि प्रभु, आप तो जाते रहते हो विष्णु जी के पास, नारायण के पास, तो आप प्लीज़ पता करके आइए कि मैं उनके पास वापस कब जा पाऊँगा. तो नारद मुनि बोले ठीक है. तो आगे चल के एक उनको मोची मिलता है. तो मोची भी पूछता है, कहता प्रभु आप उनके पास जाते हो तो आप पूछे उनके मेरा कुछ हो सकता है, मैं कभी वापस जा सकता हूँ. तो वो बोलते हैं ठीक है. तो नारद मुनि वापस जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप प्लीज़ बता दीजिए कि वो ऐसे पूछ रहे थे मुझे दो लोग. तो विष्णु जी बोलते हैं कि ऐसा है, तुम ब्राह्मण को तो बोलो कि वो कभी नहीं वापस आएगा मेरे पास. तो और कहते उसको बोलो, मोची को बोलो कि वो नेक्स्ट बर्थ में ही वापस आ जाएगा. तो बोलता है ऐसा कैसे प्रभु, ब्राह्मण इतना वो फॉलो कर रहा है सब रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, और आप कह रहे हो कि वो वापस नहीं आएगा. कहते तुम जाओ तो सही बोलो उनको. और कहते वो तुमसे पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था जब मैं उनसे मिला, तो वो मैं क्या कर रहा था, तो उसके आंसर से आपको पता चल जाएगा. तो वो जाते हैं फिर वापस. तो ब्राह्मण मिलता है, कहते हैं हाँ प्रभु मिला है. कहते हैं हाँ मैं मिला हूँ. तो बोलते हैं कि मेरे भगवान क्या कर रहे थे. तो बोलते हैं, कहते और विष्णु जी ने पहले ही बोल दिया था नारद मुनि को, जब वो पूछेंगे तो बोलना कि वो एक सुई में से हाथी को पिरो रहे थे, सुई के छेद में से हाथी को पिरो रहे थे. तो वो बोल देते हैं वही चीज़ जाके ब्राह्मण को बोलते हैं कि सुई के छेद में से वो हाथी को पिरो रहे थे. ब्राह्मण कहता है अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लग ही रहा तुम मिले ही नहीं हो उनसे, तुम ऐसे ही कुछ भी छोड़े जा रहे हो. तो उसको पता चल जाता है नारद मुनि को कि विष्णु जी सही कह रहे थे, इसको मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं. तो ही वेंट अवे. देन मोची के पास गए. तो मोची ने भी सेम पूछा कि मेरे भगवान क्या कर रहे थे, मेरे प्रभु क्या कर रहे थे. तो उन्होंने बोला कि वो सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे. तो उन्होंने बोला वाह मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं. तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लगा कि सुई की नोक में से हाथी कैसे निकल सकता है. तो वो बोलता है, कहता जब एक छोटे से सीड में इतना बड़ा बैनियन ट्री निकल सकता है, तो क्या एक छोटी सी सुई में से हाथी नहीं निकल सकता. दिस इज द डिज़ाइन. सो ही न्यू कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं. खुद सोचो ना, ये सीड्स कहाँ से आए हैं. अगर आप एप्पल कोई बना सकता है क्या? एप्पल कोई कंपनी एप्पल नहीं बना सकती. एप्पल मोबाइल फ़ोन बना सकती है, असली खाने वाला एप्पल नहीं बना सकती, राइट. सो दिस इज द डिज़ाइन ऑफ द लॉर्ड. सो वी शुड बिलीव दैट कि ही कैन डू एनीथिंग. और दिस इज, हमें कोई उसमें पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपल अपने आसपास अगर चीज़ें देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा. Isn't it? Right? Now, next, demands and urges has, every demand and urge has a fulfillment. So, can we list few urges? कौन सी urges आती हैं? What urge we have? कौन सी डिमांड आती है? Very basic. Hunger. जब hunger होती है तो उसके लिए क्या है हमारे पास? Food available है. Is it a coincidence? कि मुझे भूख लगी तो खाना अवेलेबल है मेरे लिए. और कौन सी अर्ज है? एंजॉयमेंट.
सॉरी, थर्स्ट है तो उसके लिए पानी है. हाउ स्लीप है तो मुझे उसके लिए भी, हाँ मुझे नींद आती है. राइट. सो ये कैसे, थर्स्ट है तो पानी अवेलेबल है. क्या ये इत्तेफाक है? इज इट अ कोइंसिडेंस? गाना था ना, जिंदगी इत्तेफाक है. इत्तेफाक है? नो, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. भूख लगी है तो खाना है, और हमारे पास वर्शिप की भी अर्ज है. डू वी एग्री और नॉट? ये थोड़ा ट्रिकी है. वर्शिप की अर्ज है कि नहीं है? एक माइकल जैक्सन ने मुंबई में परफॉर्म किया था, तो वहाँ पर एक लड़की गई, तो माइकल जैक्सन हग्ड हर, एंड वो 15 दिन तक नहाई नहीं. बोली माइकल जैक्सन ने हग किया मेरे को, कैसे नहा लूँगा? राइट. सो दैट इज द लेवल. अपनी ऑक्शन होती है ना लोगों के टॉवल्स की, ये सेलिब्रिटीज के टॉवल्स की, ये एल्विस प्रेस्ली के ट्रैश कैन वेंट फॉर $1 million. हमारे घर में भी कूड़ा पड़ा है, वो कोई नहीं, उसको कोई $1 million नहीं देगा. रजनीकांत का टेम्पल है, अमिताभ बच्चन का टेम्पल है वेस्ट बंगाल में. सो अगर भगवान नहीं होगा तो हम क्या करने लगेंगे? ऐसी सेलिब्रिटीज को पूजने लग जाएंगे. This is and that is why for worship, for the urge of worship, we have God. Right? So I'll quickly summarize. Can creation come without a creator? No. Can laws come without a lawmaker or a lawkeeper? No. Can an organization or a great design come without an intelligent designer? No. And can a demand and urge come without its fulfillment? No. So these are the 4 principles to prove that God exists. अब आप बोलोगे मैं अभी भी नहीं मानता हूँ, isn't it? So we discussed 3 things. कौन सी चीज़ थी? Why we don't believe. एक तो उसका कोई प्रूफ नहीं है. प्रूफ तो हमने देख लिया. क्या प्रूफ है? सी लॉर्ड, क्रिएशन, लॉ मेकर, ऑर्डर, डिजाइन एंड अर्ज, डिमांड की फुलफिलमेंट. नाउ सीइंग इज बिलीविंग. नाउ विल सी. ये दूसरा लॉजिक होता है ना, कि मैं जो देखूंगा उसी पे विश्वास करूंगा. सो टुडे वी विल डिस्कस दैट, एंड थर्ड वन विल डिस्कस लेटर. हमने ये डिसाइड किया था ना, टू मच ऑफ सफरिंग. अगर भगवान है तो इतनी सफरिंग क्यों है? दैट विल डिस्कस इन अवर सब्सिक्वेंट सेशंस. बट टुडे विल डिस्कस ऑन व्हाई सीइंग इज बिलीविंग. अगर भगवान है तो मुझे दिखाओ. कैन यू शो मी गॉड? तो इसको हम हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. जो भी हमें दिख रहा है इफेक्ट, वो हम क्या देख रहे हैं? इफेक्ट्स देख रहे हैं. उसके पीछे क्या है? देयर इज अ कॉज. जैसे कि बिजली हमें दिखती है नहीं, बट है, isn't it? ऐसे ही भगवान हमें नहीं दिख रहा है, बट इट एग्जिस्ट्स, राइट? एंड फील. दैट इज व्हाट वी कैन. किसी ने बोला था, आपके साथ ही जो माता जी आए थे लास्ट टाइम, है ना, उन्होंने बोला था, और आई थिंक आपने बोला था शायद, राइट? हाँ, आपने बोला था कि आई कैन फील दैट प्रेजेंस. सो विल कम टू दैट कि हाउ वी कैन फील कि भगवान हमारे साथ हैं, राइट? सो अगर फैन घूम रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. सिंपल. अगर किसी ने एरो छोड़ा है तो उसके पीछे कॉज क्या है? कोई है. अगर आपको एरो उड़ता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली किसी ने छोड़ा है उसको, isn't it? ये पपेट्स, ये हम गए थे वहाँ पे चौकी रानी में, वहाँ पे पपेट शो था, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है. उनको लगता है कि वो अपने आप हंस रहे हैं, बट नो, देयर इज अ पपेटियर बिहाइंड दैट. कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, isn't it? दूसरा प्रिंसिपल क्या है? द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन. जैसे ये नेकलेस है, हमें तो क्या दिख रहा है? सिर्फ नेकलेस दिख रहा है, isn't it? बट नेकलेस कैसे है उसके अंदर? क्योंकि अंदर थ्रेड है जो कि हमें नहीं दिख रहा. ऐसे ही ये जो परफेक्ट डिजाइन, ये फैंटास्टिक ऑर्डर जो हमें दिख रहा है गॉड की क्रिएशन का, उसके पीछे कौन है? कौन सी पावर है? इट्स गॉड्स पावर बिहाइंड दैट, विच इज बाइंडिंग इट ऑल टुगेदर. वो ऑर्बिट से प्लैनेट इधर उधर उड़ नहीं रहे हैं, वो ऑर्बिट में ही घूम रहे हैं. देयर इज सम एनर्जी विच इज कीपिंग देम इन ऑर्बिट, राइट? हम क्या करते हैं? अगर एक रोज, किसी पेंटर ने रोज को पेंट किया, तो उसमें क्या है? सिर्फ आपको क्या दिखेगा? कलर दिखेगा.
और अगर मैं उसकी ओरिगेमी, क्या बोलते हैं उसको, वो बनाए, अगर मैं पेपर का रोज़ बनाऊँ तो उसमें क्या दिखेगा हमें? कलर दिखेगा और फॉर्म, उसकी शेप दिखेगी। और जो एक्चुअल रोज़ है उसमें क्या दिखेगा? कलर भी दिखेगी, फॉर्म भी दिखेगी और स्मेल भी आएगी, उसकी फ्रेग्रेंस भी आएगी। तो जब हम एक पेंटिंग को इतना, एक आर्टिस्ट को इतना अप्रिशिएट कर देते हैं कि वाह क्या पेंटिंग करी है तुमने, तो जो रियल रोज़ है उसके क्रिएटर की एग्जिस्टेंस को व्हाई वी डिनाई दैट? वी शुडंट, राइट? सो बट स्टिल पीपल बोलते हैं कि नहीं, मुझे भगवान दिखाओ, आई वॉन्ट टू सी द गॉड। सो फर्स्ट वी हैव टू बिकम क्वालिफाइड टू सी द लॉर्ड। हमारी क्वालिफिकेशन ही नहीं है भगवान को देखने की। अब मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँ कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया का? ये एंथनी एल्बनीज है ना। मैं उसको बोलूँ अच्छा ऐसा करो, एंथनी एल्बनीज को बुला के लाओ यहाँ पर, यहाँ फेदरब्रुक में बैठे हैं, नाम संकीर्तन जी, प्रभु जी वो बुला रहे हैं, आओ यहाँ पर आओ, सब छोड़ के, सारा काम छोड़ के यहाँ पर आओ मेरे सामने, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का। हाउ रिडिकुलस इट साउंड्स। वो बोलेगा हाँ जी मैं आता हूँ जी, मेरे को प्रभु ने बुलाया, नहीं तो वो मुझे मानेगा नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो मैं अभी जाता हूँ, मैं अपनी सारी ये डिफेंस की मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स छोड़ के मैं जाता हूँ वहाँ पॉइंट कुक और अपने दर्शन देता हूँ जाके। इज इट हाउ इट वर्क्स? अगर मैं फ़ोन करूँगा अभी वहाँ पे पीएमओ ऑफिस, तो वो बोलेंगे हु आर यू, हो कौन तुम? इजंट इट? टू मेक इट मोर क्लियर, एक स्किट परफॉर्म करते हैं। यू वांट टू डू दैट? सो देर आर 2 फ्रेंड्स इन द कॉलेज कैंपस, ठीक है? तो माइक ले ले। तो एक थीस्ट है और एक एथीस्ट है, तो यू विल स्टार्ट अविराज। 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom makes water. Atoms, you can't even see these little things, and you want me to believe that by putting a few of them together out comes water? Give me a break. It's a fact. 2 atoms of hydrogen and 1 of oxygen make water. I'll believe it when I see it. Prove it to me. All right. You are crazy, you can never prove it. I can prove it to you. Just come into my laboratory and experiment. The first step is Yeah, right. Now the laboratory. You want me to go into your laboratory and do your experiment your way? That's just brainwashing. No. If you just look down, just take a look down this microscope. I'm not gonna do any of your crazy rituals. What are you trying to convert me? You people are nuts. You believe in all sort of crazy things. 2 hydrogens and 1 oxygen make water. What a joke. I can show it to you if only you agree to take a look through this microscope. I'll never follow your rules. You can't prove anything to me. कैसा लगा है? वो बंदा, मैं देखने को ही नहीं तैयार हूँ एक्सपेरिमेंट जो वो करना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि आके, जो ऐसे ही होता है ना, साइंटिफिक कैसे प्रूव करते हो, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। व्हेन यू फॉलो दैट प्रोसीजर यू हैव दैट ऑब्जर्वेशन। सो आई एम नॉट इवन रेडी टू लुक एट द प्रोसीजर एंड आई एम सेइंग दैट इट कैनॉट हैपन। कितना इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक है ये अप्रोच। नाउ same thing in another scenario. God exists. If we focus our efforts and devotion on God, our lives will become sublime. What? Did you just say God? This mythological character you can't even see, worship him and you will feel dandy? You expect me to believe that? It's a fact. God exists. We become complete beings through devotion to God. Yeah, whatever. I believe it when I see it. Prove it to me. All right. You have gone bonkers. You can never prove that. I can prove it to you. Just come into the laboratory and do the experiment. The first step is to remove the blindfold of attachment to the material. Oh no, that lab again? You want me to come to your laboratory and carry out silly experiment your way? That's again brainwashing. No, just begin chanting the holy names. I'm not gonna do any of this. Forget it. What are you trying to do? Convert me? You people are nuts. Believing in gods and spiritual worlds and whatnot. Spare me. You can't show me God. I'll show you God. Allow me to explain. Just show me God. I'm trying to
to tell you where to look. I'll never follow your dogmatic rules. You can't prove anything to me. Similar thing, right? So what we are trying to do is, it's illogical and unscientific request to see the observation before even doing the procedure. तो वो जो साइंस भी नहीं कर पाए रही, किसी अगर साइंस भी नहीं बता, क्योंकि मैं तैयार ही नहीं हूँ प्रोसीजर के लिए. सो टू आंसर योर क्वेश्चन माता जी, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर टू सी द लॉर्ड. वी हैव टू बिकम क्वालिफाइड. फर्स्ट क्वालिफिकेशन, देन अपॉइंटमेंट, राइट? यस. हम लोग अभी बात करें माइक. हम लोग बात करें कि क्रिएटर है और भगवान की क्रिएशन है, मानते तो है, बट हम ये भी मानते हैं कि कर्म, हमारे कर्म भी उसमें वैल्यू करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लोग जो फ्लावर है, जैसे अपने अभी रोज फ्लावर दिखाया था, ब्यूटीफुल क्रिएशन जो भी आता है, पर हम लोग मतलब ऑफ कोर्स लोगों ने क्या किया, कलम करके उसको अलग अलग कलर, अलग अलग इसके साथ किया. ऑफ कोर्स जो भगवान ने बनाया था हमने उसको मॉडिफाई किया. सो वो हमारे कर्म हुए. तो ऐसे क्यों है कि ये जो क्रिएशन है उसमें हमारे कर्म ऐड करके मॉडिफाई हो रहा है. तो हमारे कर्म अच्छे हुए बुरे हुए, दैट्स वन क्वेश्चन. दूसरा कि हमें ऐसे कर्म, जैसे कि अभी एक भगवानी मोस्टली ये सब होता है, बोलते कि हम लोग कर्म करते, तो अलाउ कैसे होता है कि ये कर्म होना? हाँ, वो जब हम कर्म का टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अलाउ कितना होना है और किसको कितना कर्म अलाउ करने की परमिशन है. जैसे कि हिटलर का इन्फ्लुएंस अगर आप देखो कितना था, पूरा जर्मन, पूरा यूरोप, राइट? अलेक्जेंडर का इन्फ्लुएंस पूरा वर्ल्ड. और हमारा इन्फ्लुएंस कितना है? घर में भी, वो भी थोड़ा बहुत, अगर बीवी करने दे. राइट? सो आपका पॉइंट है ना कि इन्फ्लुएंस कितना, मैं अपना, मेरा इन्फ्लुएंस कितना हो सकता है, राइट? सो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस कर्मा, एंड दैट्स नॉट द पॉइंट कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है. पॉइंट ये है कि जितना इन्फ्लुएंस आपको, जितना आपको एरिया मिला है, उसको 13th चैप्टर में आएगा, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ. 13th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में इसको बहुत डिटेल में प्रेजेंट किया है भगवान कृष्णा ने, कि आपका कर्म और आपके कर्म का वो दायरा, वो कम होता है और बढ़ता है, कम होता है और बढ़ता है. अभी आपका, हमारा, हम सब ह्यूमंस का एक है, इतना है. अगर हमसे नीचे जाएंगे एनिमल किंगडम में, उनका दायरा है उतना. हमने डिस्कस किया था ना ABCD और सीड में. दे कैनॉट थिंक बियॉन्ड सीड, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. इसके बियॉन्ड दे कैनॉट थिंक. वेयर एज we have those capabilities of choices, determination, bliss, ability for higher inquiry. So उनकी क्या है, लिमिटेड है. वो दे जस्ट बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, वेयर एज वी हैव दैट चॉइस कि हम वेजिटेरियन बने, नॉन वेजिटेरियन बने. उनके पास ऑप्शन नहीं है. यहाँ वो हर्बीवोर्स हैं, या वो कार्निवोर्स हैं, या वो ओमनीवोर्स हैं. बट जो हैं वही हैं. दैट डजंट चेंज. वो चॉइस नहीं है उनके पास. क्यों? उनका दायरा कम है, उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम है. दे कैनॉट गो बियॉन्ड दैट. सेम वे वी कैनॉट गो बियॉन्ड वॉट एवर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस. जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो कल को मैं बोलूँ कि मैं उड़ने लग जाऊँ, आई कैनॉट डू दैट, राइट? और जो ये 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका दायरा हमसे ज़्यादा बड़ा है, राइट? सो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो ऊपर जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे. तो जो हमें फ्री विल दे रखी है ना, जो एनिमल्स को नहीं है, हमारे पास वो फ्री विल है. दे वर्क ऑन इंस्टिंक्ट्स, वेयर एज वी हैव दैट फ्री विल. वो चॉइस है, ABCD में वो चॉइस थी ना, वो चॉइस है हमारे पास. तो उस चॉइस को मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, दैट डिसाइड्स कि मेरा वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ेगा कि कम होगा. जस्ट अ ब्रीफ आंसर, बट विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी कम टू दैट. Does that make sense? Yes. Yes. I hope all Hindus are here. Actually, my question is regarding जैसे I am 200% believe in God, so मुझे पता है भगवान है, क्रिएटर है, पर जैसे हम लोग बोलते हैं, हम हिंदूज ऑब्वियसली गॉड में बिलीव करते हो. मुस्लिम बोलते हैं कि ये दुनिया उनकी अल्लाह ने बनाई है. क्रिश्चियन बोलते नहीं, ये हमारे जीसस ने बनाई, और भी किसी धर्म के लोग हैं. तो
what's the answer for them? Like, एक्चुअली अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह इज नॉट अ पर्सन एज सच. अल्लाह मीन्स ऑल पावरफुल, राइट? सो दैट ऐसे ही विष्णु का मतलब क्या है? अगेन ऑल पावरफुल, राइट? अणु, जो एक एक अणु में प्रेजेंट है. सो ये इसको बोलते हैं गॉड नाम. द नेम्स बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज. दीज आर लाइक प्राइम मिनिस्टर इज द कॉमन नेम, लाइक बेस्ड ऑन द क्वालिटी, बट नरेंद्र मोदी इज द नेम ऑफ दैट पर्सन. ऐसे ही विष्णु जो है वो हम जब और वन गॉड मैनी गॉड्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज अगेन द टॉपिक, सब्सिक्वेंट टॉपिक आएगा वो आफ्टर 3-4 क्लासेस कि क्या है ये. ठीक है, कभी भी कुरान खोल के देख लो, कुरान में नहीं लिखा प्रॉफिट मोहम्मद आता है, उसने क्या बोला है? आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि आई एम द गॉड. जीसस ने क्या बोला? आई एम द सन ऑफ द गॉड. उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया आई एम द गॉड. कोई भी अक्रॉस रिलीजन्स, कोई भी आप रिलीजन उठा के देख लो, नो वन इज क्लेमिंग दैट आई एम गॉड. Krishna says, ओनली कृष्णा सेज इन भगवद गीता दैट आई एम गॉड, आई एम द क्रिएटर, अहम सर्वस्य प्रभवो. मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धभावः समन्वितः. And we said that Narendra Modi and the Prime Minister, it's like common noun and proper noun. हाँ, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन. पर फिर जैसे कि अगर हम तो जैसे हिंदू हैं और हमारे पास में तो फिर भी रहा है गीता है, हम लोग मोक्ष की तरफ या कैसे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हम गॉड को कैसे देख सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं, हम उस चीज़ की उसमें जा सकते हैं कि करेक्ट. पर उनके में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और हम जो देखते हैं कि उनका तो वे ही अलग है. करेक्ट. उसमें क्या है कि जो बोलते हैं कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं अपने स्क्रिप्चर्स को टॉप मोस्ट बोल रहा हूँ, बट दैट्स अ फैक्ट. जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ पोस्ट ग्रेजुएट PhD लेवल की स्टडी है ये. वेयर एज जो उनके ग्रंथ हैं, दे आर वेरी बेसिक. जीसस क्राइस्ट ने थोड़ा सा बोला था और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, और उसने बोला था जीसस ने कि आई हैव अ लॉट टू टेल यू बट यू गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड. दैट इज़ वाई वो वहीं पर रुक गई. वो जीसस और नहीं बता पाया उनको, और वो बताना चाहता था, उसको बहुत पता था, बट उस टाइम पे टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसको नहीं बता पाया वो, क्योंकि लोगों की उतनी अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं. फॉरगेट अबाउट ऑल रिलीजन्स. हमारे वेद, मैंने उस दिन भी आई थिंक वी वर डिस्कसिंग राइट, कि हमारे वेदों में ही सारे प्रोविज़न हैं. अगर आपको मीट खाना है उसका भी प्रोविज़न है, आपको जो कुछ करना है वो सारे प्रोविजंस हमने अपने वेदों में भी दे रखे हैं फॉर डिफरेंट लेवल्स. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 12, ग्रेजुएट, यूनी, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, उस सब कुछ आपको मिलेगा उसमें. बट इट अगेन बेस्ड, और सभी लोग बराबर नहीं है, राइट? हमने उस दिन ये भी बोला था कि दिस वर्कशॉप इज ऑल्सो नॉट अ कुकी कटर. ऐसा नहीं है कि सब पे मैं सेम थोप दूंगा. नो, एवरीवन इज ए डिफरेंट लेवल, एंड दैट इज वाई देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. अब अभी राज को मैं वो करवा रहा था 10 - 8, वो इसको समझ में आ रहा है 10 - 8 = 2, पर -10 + 8 = -2, ये इसको समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा अभी समझ. ठीक है, तो वो चीज़ है. तो फॉर दैट मैटर, अगर समझ आया, डिड आई आंसर, है ना? ऑलराइट, ठीक है. सो शुड वी मूव? ऑलराइट. सो नाउ हु क्रिएटेड गॉड? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि भगवान को किसने बनाया? कॉमन क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज फ्लॉड इटसेल्फ, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग. तो भगवान को किसी ने नहीं बनाया, राइट? जैसे वीडियो गेम, अब वीडियो गेम अगर मैंने प्रोग्राम किया है वीडियो गेम को, सो आई एम आउटसाइड दैट वीडियो गेम. तो जो प्लेयर अंदर, वीडियो गेम के अंदर प्लेयर मर रहा है और जी रहा है, दैट इज नॉट मी. आई क्रिएटेड दैट वीडियो गेम, राइट? सो मैं उसकी गेम की टाइम लाइन से बाहर हूँ. आई एम बियॉन्ड दैट स्पेस एंड टाइम. ये स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम काफ़ी डिटेल में, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड वी कैन हैव अ सेपरेट क्लास ऑन स्पेस एंड टाइम. आपको पता है स्पेस बेंडिंग का, राइट? मैं एक ही पॉइंट पे अगर मैं स्पेस को बेंड कर दूं, सो आई कैन बी एट 2 places एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरा हाथ है,
तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो मैं इस जगह से इस जगह तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करके आऊँगा, बट अगर मैं स्पेस को बेंड कर दूंगा तो ये दोनों पॉइंट मिल गए, तो मतलब मैं घर के इस कॉर्नर में भी और घर के उस कॉर्नर में भी एट द सेम टाइम आई कैन बी प्रेजेंट, राइट? हाँ, तो दैट इज व्हाट गॉड इज आउटसाइड ऑफ दिस। ये मटेरियल वर्ल्ड है फॉर पीपल लाइक अस, बट भगवान इन सब से बियॉन्ड है, टाइम एंड स्पेस से, इज बियॉन्ड दैट, राइट? सो नो वन क्रिएटेड गॉड, रादर गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, राइट? इसको और अच्छे से अगर हम समझें कि गॉड इज एटर्नल, कैसे समझेंगे? थोड़ा साइंटिफिक हो रहा है, लेट मी नो इफ इट इज टू टेक्निकल, वी कैन स्किप इट, बट आई जस्ट टेल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, अब उस घर को अगर मैं तोड़ दूं, घर को तोड़ दिया मैंने, तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो गया, बट क्या वो डिस्ट्रॉय हुआ? एक्चुअल में वो डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उसकी फॉर्म डिस्ट्रॉय हुई, बट वो मलबा तो वहीं पड़ा है, मैटर तो वहीं पड़ा है, मैटर तो नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैटर। जब एक मैटर और एनर्जी इज एटर्नल, सो हाउ कैन गॉड नॉट बी एटर्नल, जिसने उसको बनाया है, इजंट इट? जैसे पॉट और पॉटर की एग्जांपल दूं मैं, अगर पॉटर जो है वो घड़े बनाता है, घड़े बनाए उसने मिट्टी से लेकर, और फिर घड़ा टूट गया, वापस मिट्टी में मिल गया, फिर वापस बना दिया। सो मैटर भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सो सेम वे जिसने उसको बनाया, हाउ ही कैन बी, दैट इज गॉड इज एटर्नल। पर फिर अगेन हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए कि अगर पानी भी किसी ने बनाया है तो फिर गॉड को भी किसी ने हाँ, वो चीज गॉड को बना, हाँ, तो जिसने गॉड को बनाया है दैट इज मोर पावरफुल देन हिम, बिल्कुल राइट? सो दैट इज व्हाट गॉड इज द टॉप मोस्ट। तो उस पे आते हैं हम, ये गॉड की डेफिनेशन अब हम नेक्स्ट यही करेंगे कि हु इज गॉड देन, गॉड की डेफिनेशन क्या है। एंड एक और कि जैसे कि हमने अभी टीवीज वगैरह में या जो हमने अभी तक जाना है या समझा है, उसके उनके हिसाब से जो विष्णु देव जी हैं, तो वो नाग सैया पे शेष नाग पर, जैसे जो हमने सुना है कि वो ही हैं सबसे बड़े, वही करता धरता क्रिएटर वही है, और वो क्या बोलते हैं, शेषनाग पर शेषनाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं, उनके पांव दबा रही है, और उनकी नाभि में से निकले हैं, और उन्होंने फिर बस बातों में यहाँ चलो कुछ तो क्रिएट करते हैं, कुछ तो हलचल चाहिए, कुछ तो। हाँ, अब वो कौन से विष्णु हैं? एक विष्णु तो वो हो गए, और एक विष्णु है जो 400 फॉर्म में खड़े हैं, जिनको नारायण बोलते हैं, खड़े हुए भी हैं। आप किसी भी मंदिर में नहीं, they are different, that's what, there are so many kinds of Vishnu that we will discuss। आप जो मंदिर में जाते हो, किसी भी मंदिर में जाते हो, उसमें जो विष्णु होते हैं, आपको कभी भी कोई ऐसा टेम्पल है, आई थिंक एक आधा कोई टेम्पल होगा जिसमें आपको शेषनाग पे लेटे हुए मिलेंगे, कोई है ऐसा टेम्पल? सब जगह एक आधा होगा, बट मैक्सिमम 99% टेम्पल्स में वो आपको खड़े हुए ही मिलेंगे, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, क्योंकि उन्होंने वही रूप तो दिखाया है। किसको दिखाया? जब मतलब जब गीता में जब नो, वो विराट रूप है, दैट इज डिफरेंट, नारायण इज डिफरेंट। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ विष्णु व्हिच वी विल डिस्कस, पूरा कॉस्मोस, एंटायर वैदिक कॉस्मोस अलोंग विद ऑल द विष्णुस विल डिस्कस दैट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ विष्णुस। सो एज आई सेड कि दैट इज कॉमन नाउन, विष्णु इज अ कॉमन नाउन, दैट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन। जैसे अल्लाह इज अ कॉमन नाउन, that's what Vishnu is। Vishnu means जो हर एक अणु में मौजूद हो, that is Vishnu। तो सेम ही सबका नाम विष्णु क्यों है, मतलब अलग अलग? हाँ, अलग अलग विष्णु है, महाविष्णु, कारणो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु, क्षीरो दक्षाय विष्णु, different names based on their whatever function they are performing, not same name। अभी हमें वो नॉलेज ही नहीं है। हाँ, वो that's what वो है, इस वर्कशॉप का पार्ट है, बिकॉज वी शुड हैव क्लैरिटी एंड टू एंड। हम भगवत गीता में PhD हो जाएंगे बाय द टाइम दिस वर्कशॉप फिनिशेस। तो बस ये वर्कशॉप सरवाइव कर जाना किसी तरह। हाँ जी लोग, माइक देना। प्रभु जी, आपने बोले थे कि ये टाइप्स ऑफ विष्णु, सो कृष्णा इज पार्ट ऑफ विष्णु और
No. is Yeah, separate. that again will come to it, will detail. अभी मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट जब हम systematically will study ना, then we'll come to know the entire hierarchy कि कहाँ से start हुई सृष्टि, कहाँ से start हुई, विष्णु की पोजीशन कहाँ है, और जो हमारे देवी देवता हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे है. Everything will come to know. पूरा ऑर्ग चार्ट होगा, आएगा उसका स्ट्रक्चर का. Yeah. Right? So now we'll discuss few misconceptions and then we'll go to the definition of the God. Right? Misconceptions क्या हैं भगवान को लेके? Actually प्रॉब्लम क्या होती है? Misconceptions क्यों बनती है भगवान को लेके? क्योंकि हम बोलते हैं बाकी, जैसे मैंने अपना इनकम टैक्स करवाना है तो मैं अकाउंटेंट के पास जाऊंगा, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा. हम एक स्पेसिफिक एडवाइस लेने हम एक स्पेशलाइज्ड के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू भगवान, इंडिया में आप किसी के पास भी चले जाओ, वो 1 घंटा भगवान के बारे में बोल सकता है. इतनी ज़्यादा नॉलेज है उसको व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से. बिकॉज एनीवन कैन स्पीक अबाउट लॉर्ड, इट्स सो जेनरिक. वेयर एज और सब चीज़ों के अगर मैं बोलूँ कोई भी और स्पेसिफिक चीज़ बोलूँ, उसके लिए नहीं पता होगा, उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाना पड़ेगा. ऐसे ही दैट इज वाई देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट द गॉड. गॉड इज लाइट. भगवान क्या है? लाइट है. बहुत कॉमन है ये. लोग बोलते हैं ना कि एक ब्रह्म, ये जो पूरा ब्रह्म कुमारियों का है. आई एम नॉट श्योर, अगर आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन हियर, बट आई एम टेलिंग कि ब्रह्म कुमारियां व्हाट दे आर सेइंग इज कि गॉड इज लाइट एंड वी जस्ट हैव टू मर्ज इनटू दैट लाइट. राइट? विच लाइट? ट्यूब लाइट, नियॉन लाइट, कौन सी लाइट है? कैंडल लाइट, क्या है? वी डोंट नो. एंड व्हाट वी विल डू, मान और एक्चुअली इसकी भी डेफिनेशन आएगी. ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते. तो 3 तरह की रियलाइजेशन है भगवान की. लाइट है, बट व्हाट वी विल डू टू लाइट, क्या करेंगे हम लाइट में जाके? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? सो गॉड इज नॉट जस्ट अ लाइट. और क्या है? गॉड इज नेचर. ठीक है ना? मदर नेचर है जी. मदर नेचर ने क्या किया है? सबको बर्थ दिया है. एक्चुअली इट डज. मदर नेचर गिव्स बर्थ टू एवरीथिंग. सारी लिविंग एंटिटीज नेचर में से निकलती हैं. बट हु इज द फादर? हम हमेशा मदर नेचर ही बोलते हैं, फादर नेचर नहीं बोलते ना. मदर नेचर, मदर इज द नेचर, नेचर इज मदर, बट हु इज द फादर? गॉड इज द फादर. और भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर. सो ही इज द फादर एंड नेचर इज द मदर. Right? So God is not nature. Then some say, I am God, you are God, everyone is God. सबको खुश कर दो. मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो. इसकी स्टोरी हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. I'll tell you later. इतना है कि बस हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, लेकिन हम सब भगवान हैं. Some say rituals are God. Right? मेरे रिचुअल्स तुम्हारे रिचुअल से बेटर हैं. ठीक है ना? हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों से बेटर हैं. राइट? नो. सम से गॉड इज इमेजिनेशन. जिनको कुछ पूरे डीप डार्क इग्नोरेंस में होता है, वो भगवान है ही नहीं जी, ये जगत मिथ्या, जगत है ही नहीं, ना जगत है ना भगवान है, बस हम ही हम हैं. नो, ऐसा नहीं है. राइट? सो नाउ विल कम टू द डेफिनेशंस. सो हु इज गॉड? सुप्रीम CEO. Just to remember. Essay, I want to call it source. Who is the source? Source क्या है? अब जैसे ये नल में से पानी आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पानी? नल में से, टैप में से पानी कहाँ से आता है? डैम, रिवर. रिवर में कहाँ से आया? ओशन. ओशन में कहाँ से आया? रेन में कहाँ से आया? ओशन से ही तो इवेपोरेट होकर रेन बनी है. Isn't it? सो अटक गए जी. ओशन कहाँ से आया? किसने क्रिएट किया ओशन? सो अगर आप सोर्स पे जाओगे तो अटक जाओगे एक जगह पे आके. काउस की अडर में मिल्क कहाँ से आया? काउ ने मिल्क पिया और मिल्क दे दिया. ऐसी है, ग्रास से आया. काउस मिल्क जो रहता है वो तो काउस की बेबी के लिए रहता है. हाँ, वो तो हम ले रहे हैं, दैट्स नॉट आर कि हम लोग ले. हाँ, I'll come to it. पर पहले बताओ आया कहाँ से? ग्रास.
हाँ फीडिंग के लिए ना, और ग्रास ना भी दे तो भी अगर लगा लो एक दिन उसको ग्रास नहीं मिली खाने को, एक दिन नहीं, अगर उसको मिलेगी नहीं तो मर जाएगी वो। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो घास खाती है, उसका भोजन जो है वो घास है। अगर उसको घास नहीं मिलेगी फिर तो मर ही जाएगी बेचारी। दूध दूध की तो बात ही छोड़ो। अगर उनको बेबी नहीं होगा तो भी बन रहा है दूध। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो नेचुरल है ना। घास खा ही रही है जो अपनी गली में घूमती है इंडिया हाँ में, हाँ उनका कौन सा मिल्क आ रहा है? हाँ, बट जिनका आ रहा है उनकी सोर्स क्या है? जो तुम वट एवर यू आर ईटिंग ओनली दैट यू कैन प्रोड्यूस ना। मिल्क ऐसे ही नहीं कोई भी प्रोड्यूस कर सकता, इजंट इट? तो वो हाँ, बट वट यू आर ईटिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, यू आर आफ्टर ऑल घास ही खा रहे हो, फीड ही खा रहे हो ना, फीड से ही बना ना आफ्टर ऑल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मिल्क की सोर्स क्या है? घास, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट नाउ कमिंग टू दैट थिंग कि वो काफ के लिए है, काफ को बहुत कम मिल्क चाहिए होता है और जो काव प्रोड्यूस करती है वो बहुत ज़्यादा करती है। दैट इज द पॉइंट। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स साइंटिफिकली ट्रू। आप छोड़ दो भाई, मैं जरा वो सब पीछे निकलेगा नहीं, और वो उसके लिए हानिकारक भी है। काफ के लिए दूध डाइजेस्ट करना इट्स नॉट इजी। तभी बोलते हैं ना, आजकल डॉक्टर्स की भी थ्योरी आई है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स को दूध नहीं पीना चाहिए। दैट इज फॉर बेबीज, वो भी एक लिमिट तक। तुम इतना ज़्यादा दूध इज हार्मफुल एक्चुअली, तो वो काफ के लिए भी हार्मफुल है। सो वो जो, बट वो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करती है काव्स, सो दैट इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉट फॉर द काफ। देन जब इतना दूध नहीं लगता था, अब तो हम ये बोल देते हैं कि मैं सॉरी इस पॉइंट पे हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन हाँ हाँ, बताओ। है या कंफ्यूजन है, ये लगा लो कि जब इतना दूध नहीं कंज्यूम होता था तब बोलते थे कि अगर लगा लो कि एक घर में 4 गायें हैं, पीने वाले बंदे भी चलो 8 हैं, एक से हो गया, 2 से हो गया, एक गाय का दूध हो गया, 2 गाय का दूध हो गया, पर दो और जो बची गाय का, उनका दूध वेस्ट थोड़ी ना करते थे वो लोग। वो लोग छोड़ देते थे बच्चों को, उनकी जो गाय की जो बच्चे बच्चे होते थे उस टाइम पे भी बेचते थे दूध। मतलब आस पड़ोस में, मुझे मतलब याद है गांव में, अगर बच गया तो वो बछड़ों को छोड़ देते थे कि पियो, दैट्स फाइन। बट कहीं ना कहीं मुझे वो फील होता है कि करेक्ट, वो आजकल जो हो रहा है दैट इज इतना कार्मिक है ना, जो आज का दूध पी रहे हैं हम, दैट इज वेरी वेरी कार्मिक। और जो उस टाइम पे हम करते थे, अपने हाथों से बहुत प्यार से काव को रखते थे और बहुत प्यार से निकालते थे। यहाँ पर तो मशीन्स लगती हैं। इट्स बहुत ज़्यादा कार्मिक है आज की डेट का दूध। हाँ जी, मेरी दादी ने जैसे रखे, मतलब जब वो रखते थे पुराने टाइम, मतलब मेरी दादी ने रखा, तो वो बोलते थे कि अगर गाय मतलब कि उन्होंने जैसे नाम जो भी रखा हुआ था, अगर उसका मूड नहीं होता था तो वो निकालने नहीं देती थी, कितनी कोशिश कर लो। तो वो कि उसको सहलाना पड़ता था प्यार से, ये तभी वो निकाल। यहाँ पर हमारे फार्म्स हैं, आप विल प्लान अ ट्रिप टू द फार्म्स एंड यू विल सी, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप काउस मिल्क देती हैं। जो हमारे फार्म्स में रखी हुई हैं काउस, इतनी ज़्यादा केयर और लव से वो रखी जाती है। आई कैन शो यू द वीडियो एज वेल, बट वीडियो से वो बात नहीं बनेगी। विल प्लान अ ट्रिप, हम हरे कृष्णा वैली फार्म में जाएंगे एंड वी कैन सी दैट। और वहाँ पर यू विल अमेज्ड कि वहाँ पर बच्चे कैसे काऊ की सेवा करते हैं, अपने हाथ से वो गोबर उठाते हैं। टोटल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और सिर्फ वहाँ पर कीर्तन चलता है एंड काऊ स्टार्ट्स गिविंग मिल्क। इधर मेलबर्न में हाँ हाँ, ये ग्रेट ओशियन रोड के इधर एवरीडे होता है या कुछ? ये संडे की संडे एक्चुअली हम जाते हैं, प्लान करते हैं, एवरी संडे वी गो, और एवरी सेकंड संडे ऑफ द मंथ वी गो देयर। सो विल कवर दैट। वो ये अच्छा है, ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो बट जो ये कोल्स में दूध आ रहा है और ये सब आ रहा है, दैट इज टोटली कार्मिक। I would recommend that, but they sell, but it's very expensive. 2 liters की बॉटल है कुछ $9.5 की, 850। हाँ 850। Then I go better on almond milk. हाँ correct. सोया मिल्क, आलमंड मिल्क बेटर, they are better 100%. Oh my God. मदर काउ डेयरी, मदर काउ डेयरी। हाँ दैट्स, और ऑन टॉप ऑफ इट, ये तो खाली काउस है। बुल के साथ क्या होता है पता है आपको? इमीडिएटली बुल, अगर वो मेल काफ है, इमीडिएटली स्लॉटर्ड। और अगर वो बुल बूढ़ा हो गया, स्लॉटर। कोल्स में पता है आपको,
काऊ भी अगर आधा लीटर भी कम उसकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है ना, दे स्लॉटर इट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड. सेंट्स पे चल रहा है ये बिजनेस. कुछ सेंट्स भी इधर ऊपर नीचे हो गए, दे स्लॉटर इट. दे वोंट वेट कि अच्छा आधा लीटर कम आ रहा है देने लग गई तो स्लॉटर नेक्स्ट काउ. सो दिस इज डिफरेंट टॉपिक बट या. Hare Krishna, people are interested in buying that milk, so we can get maybe next हाँ Friday. वो पूरा प्रभु आते हैं, वो घर पे डिलीवर करके जाते हैं. इफ एनीवन ऑफ यू अपने लिए नहीं, एटलीस्ट बच्चों के लिए. हम तो आलमंड मिल्क या नहीं भी पिएंगे वी कैन सर्वाइव. बच्चों के लिए आप उसकी देखना, उसको ड्रिंक करके देखना, टोटली डिफरेंट टेस्ट है उसका. इतनी मलाई आती है उस पे और इट्स अमेजिंग. डिवाइन मिल्क है वो. इंडियन काऊ या जर्सी का? दैट आई एम नॉट श्योर कि कौन सी ब्रीड है बट दोनों का एक ही क्वेश्चन था. मैं इनसे यही पूछ रही थी, अभी देसी गाय है क्या? Prabhuji, we are concentrating on seed again. sleeping, eating पे stuck हो गए. Right? Coming back to the source of everything, है ना. तो अगर मैं किसकी सोर्स हूँ? अपने फादर. मेरे फादर कहाँ से आए? अपने फादर से. इफ आई बैक ट्रैक यू नो वेयर आई विल एंड अप? टू गॉड. वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुई थी. और आपने सुना होगा ना गोत्र. आपका गोत्र क्या है? आपका किसी का कश्यप गोत्र होता है, किसी का भारद्वाज गोत्र होता है. सो ये क्या है? ये हम सभी क्या है? ऋषि मुनियों से आए हैं, उनकी लीनिएज से आगे आए हैं. वो बहुत डिटेल में भागवतम में डिस्कस होता है कि हाउ दैट प्रोजेनी क्रिएटेड, व्हेन इट वाज क्रिएटेड एंड हाउ इट वाज क्रिएटेड. सो एवरीथिंग, हर एक चीज़ की सोर्स क्या है? ब्रह्मा कहाँ से आए? जैसे आपने बताया विष्णु जी से. सो वी बैक ट्रैक, वी आर द एवरीथिंग इज coming from the source, the original source, which is God. Now controller, very interesting. God is the, ये God की definition चल रही है, ठीक है. One who is the supreme controller is called God. Right? एक विलेज में एक बंदा होता है, वो बोलता है कि मैं तो जो सुप्रीम है ना उसको सर्व करूँगा. तो वो अपने गांव में सरपंच को सर्व करने लग जाता है. तो बाद में उसको पता चलता है अरे सरपंच के ऊपर तो मेयर है. फिर वो मेयर को सर्व करने लग जाता है. हार्ड वर्किंग होता है तो उसकी प्रमोशन हो जाती है. फिर मेयर के ऊपर वो बोलता है कि अच्छा गवर्नर होता है, गवर्नर को करने लग जाता है. फिर फाइनली करते करते वो किंग का असिस्टेंट बन जाता है कि मैं तो भाई किंग को सर्व करूँगा. एक दिन क्या होता है कि किंग के पास एक सेज आता है. तो जैसे ही सेज आता है वो किंग खड़ा होकर उसको दंडवत प्रणाम करता है. तो वो देख रहा था अरे ये साधु को कर रहा है प्रणाम. मैं तो सोच रहा था ये सबसे सुप्रीम है, ये तो साधु सबसे सुप्रीम हुआ. तो फिर साधु जा रहा होता है तो साधु से पूछता है, कहता जी मुझे बताओ ये आप हो क्या सबसे सुप्रीम? कहता नहीं मैं नहीं हूँ. कहता आ जा मैं तेरे को बताता हूँ कौन है. वो उसको मंदिर लेके जाता है और मंदिर में जाके वो सब प्रणाम कर रहा होता है. और मंदिर में जाके वो सबको देखता है, सरपंच, किंग, एवरीवन इज बाउंड डाउन टू गॉड. So that's when he came to know that God is the supreme controller. He is on the top. He is supreme, right? And now coming to controller. क्या अच्छा कंट्रोलर पे भी एक कहानी सुनाता हूँ, मज़ेदार है. हमारे टेम्पल में एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि आई एम गॉड. जैसे मैंने वो मिसकंसेप्शन बताई थी ना, तो उसकी कंसेप्शन थी कि आई एम गॉड. तो वाह, कहते तुम गॉड हो? कहते हाँ. तो उससे आर्ग्यू करता है थोड़ी देर. वो बोलते कि नहीं तुम गॉड नहीं हो सकते. तो आर्ग्यू करता रहता है. इतने में उसको सुसु आता है. तो वो बोलता है मुझे सुसु जाने दो, वॉशरूम जाने दो. तो बोलता है कहाँ पर है मुझे बता दो. तो कहता तुम तो गॉड हो, ढूंढ लो कहाँ है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, अंदर ही आ गई. बोलता है नहीं यार ऐसे थोड़े ना होता है. कहता नहीं बताओ. वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है. तो उसको जाने ही नहीं देते वो. तो कहता है यार प्लीज़. पहले तो नेचर वॉज कॉलिंग, देन नेचर स्टार्टेड शाउटिंग बट दे डिडंट अलाउ. तो वो बोलते हैं कि अच्छा चल ऐसा कर, पहले तू बोल के तू नहीं है, फिर जाने देंगे. तो वो 2 घंटे बाद बोलता है अच्छा मैं नहीं हूँ गॉड, मुझे जाने दो. तो वो जाके आता है. तो जाने के बाद फिर वो वापस आता है. तो बोलता है कि हाँ ठीक है. कहते हैं मान गया ना तू? कहता नहीं मैं तो गॉड हूँ. कहता है यार अभी तो तूने बोला था तू कंट्रोल नहीं कर पाया तो तू गॉड कैसे हो सकता है? तो बोलता है, कहता वो तो मैं लीला कर रहा था अपनी, आई वॉज डूइंग अ पास टाइम. राइट. बट द पॉइंट हियर इज कि हमसे अपनी बॉवल मूवमेंट नहीं कंट्रोल होती, अपनी बॉडी की. हाउ कैन वी बिकम अ कंट्रोलर? राइट. इवन अवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय गॉड. दैट इज द
स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर आवर बॉडी। हमारा दांत दुखता है और हमें नहीं पता उसका रूट कॉज क्या है, उसके लिए हमारे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो हमें बताता है हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा कंट्रोल है बट वेरी लिटिल कंट्रोल। जैसे आपने पूछा था ना हमारा कितना कंट्रोल है, वेरी वेरी माइन्यूट कंट्रोल। तो राइट। एंड सेकेंड इज CE। E से क्या है, ही इज द सुप्रीम इंजॉयर। हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, इंजॉय करना, टू एक्सपैंड अवर जॉय। कितना मज़ा, हर चीज़ में मज़ा मज़ा मज़ा। बट क्या हम मज़ा कर पाते हैं? इतनी पेनफुल जॉब, इतनी स्ट्रेसफुल जॉब, एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं, उसके बाद क्या मिलता है? क्यों एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं? ताकि हमें प्रमोशन मिले, हमारी सैलरी रेज हो जाए, हमें ऑन साइट मिल जाए। इंडिया में काम करते हैं ना, ऑन साइट मिल जाए। इतना सब कुछ करने के बाद क्या कितनी खुशी मिलती है हमें? $1,000. You are telling my salary, so the point here is कि इसमें किसकी एग्जांपल देते हैं? अगर एक होटल का ओनर है तो वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट एंजॉयर है, विच मीन्स क्योंकि वो उसका ओनर है और वो उसको एंजॉय कर पा रहा है जो भी उसके रिसोर्सेज हैं। बट अगर उसके अंदर एम्प्लॉयज हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है? ओनर पे डिपेंडेंट है। वो सैलरी देगा, वो तब एंजॉय करेंगे, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस। सो हु इज द सुप्रीम एंजॉयर? God is the supreme enjoyer, whereas we are dependent on him for our enjoyment. हमें अपनी बॉडी का नहीं पता। भगवान जी तो हर एक चैनल पर देखते होंगे कि उनके पास में तो इतने सारे चैनल्स हैं कि हाँ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज कौन सी सांस वो लड़ेगी। उनको जरूरत ही नहीं है, ये डजंट केयर अबाउट अस। ये तो मैंने बोला था ना, दुखालने में शाश्वत में उठा के जेल में पटक दिए गए हैं एक कॉर्नर में। तो हमारे कर्म इतने बुरे थे, इसका मतलब। एग्जैक्टली, बहुत बुरे। हम बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हमें पता नहीं है कि हम कितनी डेंजरस सिचुएशन में हैं। कभी क्या हो जाए, यू नेवर नो। बाबू मोशाय कब कहाँ क्या हो जाए। हाँ, क्या डायलॉग था उसका? जिंदगी लंबी होनी चाहिए। सो हमें पता नहीं है कि हम कितने गलत उसमें फंसे हुए हैं। नाउ CEO, ओनर। आई एम द ओनर। हम बोलते हैं ना कि मैं ओनर हूँ, इस घर का मालिक मैं हूँ, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, राइट? तो एक बार अकबर ने बोला, कहता यार मैं तो अपनी ना बीवी का गुलाम हूँ। तो बीरबल बोलता है कि कोई बात नहीं, सभी बीवी के गुलाम होते हैं, कोई ओनर नहीं होता, नो वन इज़ द सुप्रीम ओनर। तो बोलता कहता नहीं यार, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो बीरबल बोलता है ऐसा करते हैं, हम सर्वे करवा लेते हैं, वो सारे गांव वालों को बुला लाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी अपनी बीवी की बात मानता है वो एक साइड पे खड़े हो जाएं, और जो अपनी बीवी की बात नहीं मानता वो एक साइड पे खड़े हो जाओ। तो सभी लोग एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, बीवी की बात मानते हैं वो। सिर्फ एक व्यक्ति है जो अलग खड़ा रहता है। अकबर बड़ा खुश होता है कि वाह, देखा एक आदमी तो है जो अपनी बीवी की बात नहीं मानता। तो वो कहता है, फिर उससे पूछता है, बीरबल कहता है लेट मी आस्क। तो उससे पूछता है कि आप क्यों नहीं गए? कहता है मुझे मेरी वाइफ ने कहा जहाँ सारा क्राउड जाए वहाँ नहीं जाना, अलग से खड़े होना है। सो दैट्स द थिंग। हमें लगता है हम अपनी वाइफ के ओनर हैं। नो, हम किसी चीज़ के वी आर नॉट द सुप्रीम ओनर। दैट्स द थिंग। मुंबई लोकल में आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हैं मुंबई में, तो एक सीट पे वहाँ पे कितनी लड़ाई होती है, राइट? तो एक आदमी ने ऊपर अपना बैग रखने के लिए ना सीट से खड़ा हुआ, इतने में दूसरा आदमी आके वहाँ बैठ गया। अब वो लड़ने लग गए आपस में कि भाई तू, वो कह रहा कहता है बाप की सीट है, वो कहता नहीं तेरे बाप की है। ऐसे ऐसे करते करते वो लड़ाई शुरू हो गई। इतने में वो लड़ाई कर रहे हैं, तीसरा बंदा आके वहाँ बैठ गया, ठीक है? अब वो क्या हो गया, उनका स्टेशन आ गया, वो उतर गए, ट्रेन चली गई, वो लड़ रहे हैं, तो सीट भी चली गई, सब कुछ हो गया, पर वो लड़ रहे हैं वहाँ पर। सो दैट इज द स्टेट। हम एक इतनी प्रोप्राइटरशिप है, इतनी ओनरशिप की हमारी है कि वो सीट मेरी है, वेयर वो सीट किसकी है? किसी की नहीं है वो सीट। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ऐसे ही हमने भी ये सारे इस दुनिया में ना अपनी अपनी उपाधियाँ ले रखी हैं, अपनी अपनी सीट्स ले रखी हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट गोज अवे। एवरीथिंग इज टेम्परेरी हियर, राइट? एक बार एक राजा होता है, तो उसके पास एक अगेन साधु आता है। तो वो बोलता है कि मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ और एक बुरी खबर लाया हूँ। तो राजा बोलता है पहले मुझे बुरी खबर सुनाओ।
तो बोलता है कि आप ना 7 दिन में मरने वाले हो। तो कहता हो इससे बुरी अब अच्छी क्या रह गई इसके? कहता नहीं अच्छी है कि आप इसके बाद स्वर्ग में जाओगे। कहता वेरी गुड। कहता पर एक बैड न्यूज़ है कि जब स्वर्ग में जाओगे ना इट इज़ वेरी क्राउडेड, वो बहुत क्राउडेड है। कहता हो, कहता बट नो डोंट वरी, आपके लिए एक अलग से पैलेस है, आप उस पैलेस में आराम से रहोगे। कहता हो गुड। कहता पर एक प्रॉब्लम है, बैड न्यूज़ है कि वहाँ पर मच्छर बहुत हैं। तो कहता ओहो, तो कहता अच्छा, तो कहता बट नहीं, एक गुड न्यूज़ भी है कि वहाँ पर आपके लिए मच्छरदानी भी होगी। अब मच्छरदानी है तो फिर वो कहता कि अच्छा, कहता बट एक बैड न्यूज़ है, मच्छरदानी में क्या है, छेद हैं, राइट। तो वो बोलता है अच्छा छेद हैं, तो कहता बट गुड न्यूज़ है कि आप उसको सिल सकते हो। कहता अच्छा, कहता बट बैड न्यूज़ है कि वहाँ पर सुई नहीं मिलेगी आपको। कहता अच्छा, तो कहता नहीं बट अच्छी न्यूज़ है कि आप मरने से पहले यहाँ से वो सुई लेके जा सकते हो। कहता चलो गुड। तो वो चला जाता। फिर वो बाद में उसको बोलता इधर इधर, मैं सुई कैसे लेके जा सकता हूँ मरने से पहले यहाँ से? सो द पॉइंट हियर इज टू किंग ही अंडरस्टूड कि यहाँ मरने से पहले, मरने के बाद मैं एक सुई तक नहीं यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बिकमिंग द ओनर ऑफ एवरीथिंग? ही इज द सुप्रीम ओनर, ही ओन्स एवरीथिंग। दैट्स द पॉइंट हियर, राइट? So CEO, ओनर, अगेन बॉडी बहुत अमेजिंग है। बॉडी का ओनर कौन है? सोल। वी आर नॉट गोइंग देयर येट, अभी बॉडी पे एक मैटर पे ही बात करते हैं। हु इज द ओनर ऑफ द बॉडी? ब्रेन। ब्रेन कहाँ से आया है? इंग्रेडिएंट, बॉडी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इतने सारे, जो पार्ट्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? इनका सोर्स क्या है? सोर्स, सुप्रीम सोर्स, तभी तो सुप्रीम सोर्स, एस इज सोर्स। तो सोर्स क्या है? सारी हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से आए हैं? सुप्रीम सोर्स से, भगवान से आए हैं। तो अगर भगवान ने से वो पार्ट्स आए हैं तो हु इज द प्रोपराइटर? ही इज द प्रोपराइटर। एंड किसी और की चीज को हम अपना बोल रहे हैं कि ये मेरी बॉडी है, किसी और की चीज को कोई अपना बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? चोर। हम सब चोर हैं। अरे क्या बोल रहे हो प्रभु, हम जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे इस वर्कशॉप में, चोर बोल रहे हो हमें। शिव भगवान जी भी चोर थे, माखन चोर थे। तो isn't it amazing? हम अपनी बॉडी तक हमारी नहीं है और बॉडी भी हमारी नहीं है। तो ये क्या है? भगवान की दी हुई बॉडी है जिसको वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ, राइट? If we are abusing our body or anyone else's body, that is a crime, right? अगर बाथरूम में choice is our, हाँ, choice है, we can do whatever we want. तो फिर भगवान जी ने चॉइस भी ऐसी ही चूज करवानी चाहिए ना, जब उनकी बॉडी है, उनका दिमाग है। मतलब मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मतलब एक कंपनी का एक सीईओ है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे ना सब चीजें कंपनी के अंदर। ठीक है, ये तो है नहीं कि एम्प्लॉयज अपनी मर्जी का काम करना शुरू कर देंगे। नहीं जी मैं तो आज छुट्टी मारूंगा, ऐसा है नहीं। वो बोलेगा ठीक है छुट्टी मारेगा, बैठ घर पर। तो चॉइसेस भी उनको ही करवानी चाहिए कि जैसे लगा लो कि डायबिटीज तो कोई पेशेंट है तो उनके दिमाग में ऐसे स्क्रूज होने चाहिए कि ये खाना ही नहीं है, मीठा खाना ही नहीं है। अब लगा लो जहर है, जहर नहीं खाते, हमें पता है हमें जहर खाएंगे हम मर जाएंगे। तो फंक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि जिसको टपकवाना है भगवान ने, उसका मन किया, क्रेविंग हुई जहर खाने की, उसने जहर पिया और टपक गया। मतलब बीमारी से क्यों टपकवाना भगवान को? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सॉरी। मतलब नहीं, हमारा रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश कर रहा है। ये तो सीईओ इज नॉट, वो तो जस्ट एब्रिविएशन है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर और सुप्रीम ओनर। वो तो याद करने के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि भगवान इज सीईओ, नॉट सेइंग दैट। ये तो जस्ट एब्रिविएशन है याद करने के लिए। जैसे मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ कि हमारे सीईओ हैं। I think she needs to say that like he shouldn't allow these things to happen. हाँ, वो तो हमारा थर्ड पॉइंट था ना, वी डिस्कस दैट। हमने वो स्लाइड में देखा था ना कि इफ गॉड एग्जिस्ट व्हाई देयर आर सो मेनी सफरिंग्स। विल कवर दैट, विल कम टू दैट। राइट, Why you have a free will? हाँ, why we have a free will? Is this what you are asking? अच्छा, आपको फ्री विल नहीं चाहिए? वाओ, भगवान जी को अपने आप अच्छी चीजें चूज करवानी चाहिए। दैट्स व्हाट। अगर आप अपने बच्चे को, अभी किसी के टीनेजर यहाँ पे होने वाले होंगे, अभी नहीं है, तो क्या आप किसी को जबरदस्ती अपने पास रख सकते हो?
You can never do that. फ्री विल तो भगवान ने नहीं हमसे ली, दैट इज वाई नहीं ली वो, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को अपने पास नहीं रख सकते। हम खुद भी तो नहीं रहे ना, हम खुद नहीं रहे, अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहे ना, हमारे मन किया हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। फ्री विल नो वन कैन टेक, भगवान ने नहीं ली हमसे। हम ऐसे ही हम भी किसी को जबरदस्ती आप अपने पास रख सकते हो? नहीं रख सकते। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल, फ्री विल यू कैनॉट टेक, राइट। सो जब हम भगवान को एक्सेप्ट करते हैं ना, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ का। दैट इज वाई वी कंसिडर कि भगवान इज द सुप्रीम ओनर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर। तो वी एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, जस्ट बाय एक्सेप्टेंस वी बिकम सो पीसफुल कि यस यार, मैं इस दुनिया में एंजॉय करने आया ही नहीं हूँ, आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द एंजॉयर, राइट। सो यहाँ पर बट पीपल यूज एंड थ्रो हियर एनीहाउ। सो दिस इज सुप्रीम कंट्रोलर, ओनर। एंड नाउ भगवान, हु इज भगवान? भगवान की एक तो सुप्रीम सीईओ डेफिनेशन हो गई, और भगवान धनवान। धनवान के पास क्या होता है? धन। जिसके पास बहुत सारा धन हो उसको क्या बोलते हैं? धनवान। जिसके पास बहुत सारी विद्या हो उसको क्या बोलते हैं? विद्वान या विद्यावान, विद्वान, राइट। जिसके पास बहुत सारा बल हो, बलवान। तो वान इज कॉमन हियर। व्हाट डू यू मीन बाय वान? वान का मतलब क्या है? owns, possessor, one who owns it, he is the possessor। बहुत सारे बल का जिसके पास possession हो, that is called बलवान। what is भग? भगवान तो सुना होगा ना तुमने, भगवान। तो भग क्या है उसमें? भक्ति, भाग्य, भाग्य, भगवान, वो तो भाग्यवान हो गया। भोग, भोगवान नहीं, तो भोग हो गया। भग, भगवान, इसीलिए दिखते नहीं है किसी को। भग का मतलब क्या है? भक्ति, नो, दैट इज भक्ति। भग का मतलब है ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस, जिसके पास ऑप्युलेंस, ऐश्वर्या राय नहीं, ऐश्वर्या। संस्कृत में ऐश्वर्या और इंग्लिश में ऑप्युलेंस। हिंदी का वर्ड भी, हिंदी में ऐश्वर्या ही है। ऐश्वर्या से थोड़ा अब बीच वाला नहीं मुझे आता। ऐश्वर्या है, यहाँ ऑप्युलेंस है। चमत्कार, नो, नॉट चमत्कार। सारी क्वालिटी जैसे बलवान, हाँ। सो वो कौन सी छह तरह के ऑप्युलेंस हैं जो भगवान की डेफिनेशन में आते हैं। 6 तरह के ऑप्युलेंस हैं, और वो कौन से? किस चीज को ऑप्युलेंट कंसिडर करते हो आप? ऑप्युलेंट, अमीर, विच मीन्स वेल्थ। वेल्थ इज वन कैटेगरी के उसके पास बहुत सारी वेल्थ है। सो हेल्थ या पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ, राइट। तो अगर पैसा है किसी के पास, तो पैसे से ही दैट पर्सन बिकम सो अट्रैक्टिव, इजंट इट? यार वाह क्या पैसा है उसके पास, लोग अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ और कौन सा होता है? ब्यूटी, राइट। जो बंदा बहुत स्मार्ट है, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, है ना, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड जस्ट बाय वन फीचर ऑफ ब्यूटी, वन फीचर ऑफ मनी, पावर, स्ट्रेंथ, माइंड ऐसा नहीं है। माइंड तो एक ऑब्जेक्ट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा हो आपके पास, हाँ, वो नॉलेज, यस, नॉलेज इज द राइट वर्ड। सो बहुत सारा नॉलेज हो, राइट। तो नॉलेज, एक बार क्या हुआ, आइंस्टाइन के पास बहुत नॉलेज थी, राइट। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसके पास एक लेडी आई, बहुत ब्यूटीफुल लेडी आई। तो उसने बोला कि विल मैरी, जो हमारे बच्चे होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ, और बहुत नॉलेजेबल होंगे क्योंकि तू नॉलेजेबल है। तो वो बोलता है, कहता अगर उल्टा हो गया, अगर शक्ल मेरे पे चली गई हाँ, और अकल तुम पे चली गई तो क्या होगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। ऐसा आपको कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास ऑल द वेल्थ, all the power, all the knowledge, all the beauty, all the fame. Last is renunciation, yeah. अब ये 5 चीजों के बाद 6वीं चीज क्या है? त्याग। जिसका त्याग भी सबसे ज्यादा हो,
मतलब ये पांचों चीज़ें हैं उसके पास और उसके बाद भी उसको उसकी परवाह नहीं है, छोड़ के चला जाएगा, वो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। ऐसा जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हों, दैट पर्सन इज कॉल्ड भगवान। हम थोड़ा सा पैसा आता है, हम उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी ब्यूटी होती है उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सोचो जिसमें ये वेल्थ, पावर, ब्यूटी, फेम, ये सब कुछ है जिसके पास, वो कितना अट्रैक्टिव होगा। एंड दैट इज कॉल्ड भगवान, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान। सुप्रीम CEO, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम ओनर एंड भगवान। भगवान की डेफिनेशन, जिसके पास सारी वेल्थ, सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, सारी ब्यूटी, सारा फेम, और उसके बाद भी इज द टॉप मोस्ट रिनंसिएंट, ही डैम केयर्स। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान, राइट? डज दैट मेक सेंस? सो टुडे I'll recap. It's 8:40. 4 मिनट में recap क्या है कि if we just apply our common sense, हमें भगवत गीता और ये सब ज्ञान देखने की जरूरत नहीं है। हमने जो भी पहले डिस्कस किया था कि हमें आसपास अगर हम चीज़ें देखें, जैसे मैंने वो चीज़ें दिखाई थी ना, वो वॉलनट और ये सब, और नेचर को देखें, हमें ईच एंड एवरी चीज़ में हमें भगवान दिखेंगे, राइट? हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। विल बी एबल टू डिड्यूस कि गॉड एग्जिस्ट्स, राइट? जस्ट लुक अराउंड, जस्ट लुक एट द परफेक्ट डिजाइन ऑफ दिस वर्ल्ड, विल कम टू नो। एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि अपने आप ही सब कुछ हो गया जी, पानी भी अपने आप आ गया, मुझे प्यास लगी, खाना भी अपने आप आ गया। नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग फाइन एज वेल। ऐसा नहीं है कि सूरज हमेशा सेम टाइम पे सही तरीके से ईस्ट में ही उग रहा है। ऐसा नहीं होता कि आज जी सूरज वेस्ट से उग जाएगा, या आज सर्वर डाउन है, आज मेंटेनेंस चल रही है सूरज की, ऐसा नहीं होता ना कभी। It is never down, it is always up. So, and next we discuss is कि we should have the qualification to see the God. We can't just see the God like that. We have to first, वो जो हमने skit की थी, the purpose of that skit was to कि हमारे अंदर वो चला जाए कि first we have to follow the procedure, process follow करेंगे तभी हम भगवान को देख पाएंगे। अगर हम process follow नहीं करेंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। जब तक मैं लेबोरेटरी में जाके माइक्रोस्कोप में H2O को नहीं देखूंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि वो पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, राइट? एंड देन वी सॉ अबाउट द मिसकंसेप्शंस। क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं कि लाइट है, भगवान रिचुअल है, ये वो, राइट? सो एंड देन वी केम टू द रियल डेफिनेशन ऑफ द गॉड, विच इज सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर एंड सुप्रीम ओनर। तो जो ओनर होता है वो ही एंजॉय करता है। अब ये घर है, अगर घर मैंने किसी को बनाने के लिए दिया कि आप घर बनाइए जी, तो किसी बिल्डर ने आके घर बनाया, अब बाद में वो बोलेंगे तो मेरा घर है। That's not how it's gonna work, because I paid for it, so I am the owner of it. So I will enjoy that house, not that builder, right? So और ओनर में हमने देखा कि स्मॉल पोजेशंस, छोटे छोटे पोजेशन से हम इतने प्राउड हो जाते हैं, whereas एक सुई भी हम साथ लेकर नहीं जा सकते, right? So next we'll discuss very interesting topic, how to seek perfect knowledge of the God and is accepting scriptures blind faith. So we'll talk about faith, we'll talk about scriptures, and we'll talk about how to acquire that knowledge. कि scriptures accept करना चाहिए हमें scriptures को, जो scriptures में लिखा है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए। That was your question as well, right? कि scriptures में जो लिखा है हम कैसे मान लें उसको कि वो सही लिखा है, right? So that topic we'll cover next time, and we'll also see कि कैसे perfect knowledge about God we can seek, right? Then we'll go to Bhagavad Gita, not straight away, but first we need to know ना basics, पहले groundwork clear होना चाहिए, scriptures है क्या, उनमें क्यों यकीन करूँ, those sort of things should be there, and then we'll reach to the level where we can actually study that. All right, questions, comments? दो क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। एक तो जैसे कि कृष्ण भगवान जी ने भी जन्म लिया था, वो भी दुखालय में लिया, उस टाइम पे भी जैसे कि भगवान राम ने भी लिया, वो भी दुखालय में लिया, तो क्यों? That's what that is again one of the misconception that you are God, I am God, everyone is God. कि देखो
कृष्ण को तुम भगवान बोलते हो, उन्होंने भी तो जन्म लिया इस दुखालय में, और उनका जन्म तो अगेन वेरी ट्रेजिक है ना, कि उनको तो फॉस्टर होम में रहना पड़ा, क्योंकि अपने माता पिता ने उनको छोड़ दिया, उनको त्याग कर दिया, और उसके बाद वहाँ पर भी उन पे अटैक होते रहे। राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट? So these topics we'll discuss when we discuss about one God and many God, and again when we go into deep into scriptures कि वो faith वो कैसे आएगा, और and why he is doing that. Why he is doing that is just to it's a leela, it's a pastime. Otherwise whatever he is doing, और बहुत सारी ये जो 6 क्वालिटीज मैंने बताई हैं वो सारी उनमें एग्जिस्ट करती हैं इन फुल। गोवर्धन पर्वत को उठाया, किस पे उठाया? लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे। ये सबसे वीक होता है, लेफ्ट हैंड वैसे ही वीक होता है, और उसके बाद उसकी पिंकी फिंगर वैसे ही उससे सबसे वीक होती है। उस पे 7 दिन 7 रात तक इसको उठाया। तो ऑल पावरफुल, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई क्या हो सकता है? और एक और क्वेश्चन था बट थोड़ा हटके है। जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे एक बार सोल के बारे में, और सोल को हमें मतलब कि वही जो पुरानी बात कर रहे थे, तो जैसे कि मैं ऐसे कुछ देख रही थी तो उसमें ये दिखाते हैं कि मतलब कि कुछ एक ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि आपकी सोल से बात करवा सकते हैं, या कुछ मैसेज होता है उनका, या कुछ ऐसा मतलब ऐसे बोलते हैं। तो वो मतलब क्या है, मतलब कि सोल रहते हैं यहाँ पर यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स इन द सेंस कि इधर ही है, इसी अर्थ पर ही है, क्योंकि वो मतलब जैसे कि कई बार हम भी शराध करते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो लोग मतलब कि उनको, जैसे कि पंडित जी भी हमारे धर्म में भी कि बोलते हैं कि नहीं उनको खाना मिलेगा, उनको ये होएगा, श्राद्ध करते हैं। तो इसका क्या वो एग्जिस्ट करते भी हैं कि क्या उनका नेक्स्ट बर्थ हो चुका है? हाउ डू वी नो दैट? और सोल से वो कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं? अगर मतलब कि ये है कि हम आपसे बोलते हैं कि भाई वो तो अपने कर्म जो भी उन्होंने अपने जीवन में कर्म करे वो उसके अकॉर्डिंग वो मूव हो चुके हैं। मतलब हम एक पार्ट वो भी बोलते हैं कि भाई अगर उन्होंने अच्छे कर्म करे हैं, उन्होंने सब कुछ अच्छा अपनी लाइफ में किया है, तो वो भगवान जी के पास में उनके चरणों में उनका वास हो गया, मतलब काइंड ऑफ कि उनको दोबारा जीवन लेने की जरूरत, मतलब कि उनको कोई। आपका क्वेश्चन बेसिकली सोल जर्नी ऑफ द सोल पे है, जर्नी ऑफ द सोल पर, या फिर कि सोल एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, तो ये सोल का जस्ट राइट आफ्टर दीज 2 टॉपिक्स सोल का ही टॉपिक है। उसमें हम सारी चीज़ें सोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या जर्नी है और क्या है। बट जस्ट टू आंसर स्मॉल थिंग कि जो मेरे को भी ये डाउट आता था कि क्या हमारे जो पितृ हैं जो हम श्राद्ध करते हैं, क्या वो वहीं पर हैं कि वो आगे मूव ऑन कर चुके हैं? तो हमें वी नीड टू नो द अगेन, उसमें हमें वैदिक कॉस्मोलॉजी पूरी हमें समझनी होगी। जैसे भूर्भुवः स्वः ये बोलते हैं ना, तो उसमें क्या है? स्वर्ग लोक है और भूवर लोक है। पृथ्वी के और स्वर्ग के बीच में एक भूवर लोक आता है, दैट इज द एरिया ऑफ घोस्ट। वहाँ पर घोस्ट होते हैं, फिर ऊपर स्वर्गलोक होता है। हर एक लिविंग एंटिटी का एक एक लोक है। तो ऐसी पितृ लोक भी है जहाँ पर सारे पितृ होते हैं। दे आर वेटिंग फॉर द यमराज की जजमेंट के लिए, कि उसके थ्रू जाते हैं जो कि अच्छा इट्स ए बिग क्यू। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टाइम जोन्स आर डिफरेंट। अगर यहाँ पर जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि डेमी गॉड्स जो स्वर्ग में है, स्वर्ग का 12 घंटे हमारे 6 महीने, और 12 घंटे उनकी रात हमारे 6 महीने, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि तारा इसमें इसमें तारा डूबा हुआ है, हाँ, तो उस टाइम में हम शादी नहीं करते। वो उस टाइम पे क्या होते हैं कि वो जितने भी देवी देवता वो सो रहे होते हैं। सो 12 घंटे इन स्वर्गलोक इज इक्वल टू 6 months here, and 12 hours daytime is again 6 months. So now again this is the स्वर्गलोक। अब पितृलोक की भी ऐसी उसकी कैलकुलेशन आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसी उनकी भी कैलकुलेशन है। तो अभी जो हमारे गए हैं, सो इट कुड बी कि वहाँ पर जस्ट अभी 1-2 सेकेंड ही हुआ हो और यहाँ पर हमारी पूरी लाइफ टाइम निकल जाए, या वहाँ पर एक ही दिन हुआ हो और हमारी पूरी लाइफ टाइम यहाँ पे निकल जाए। दैट इज वाई वी डू कि अभी वो वहीं पर ही हैं।
पे तो लोग नहीं हैं, और उनको वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम हो गया है, वहाँ पर अभी उनका एक ही दिन हुआ है या आधा ही दिन हुआ है, आई डोंट नो दैट नंबर. सो दैट इज़ वाई नॉट ओनली अवर हम अपने पेरेंट्स का करते हैं, उनके पेरेंट्स का भी, ग्रैंड पेरेंट्स का भी करते हैं, राइट? बिकॉज इट कुड बी दैट दे आर स्टिल देयर. So just to cover that up, okay, they और वहाँ पर they are waiting, and so we offer something and they'll get there. तो वो शॉर्ट ही नहीं है, जैसे बोला it could be there, मतलब वो वहाँ हो सकते हैं. नहीं, पेरेंट्स तो डेफिनेटली हैं. आई एम सेइंग कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पर हैं कि निकल गए हैं. दैट इज द पॉइंट, क्योंकि टाइम का डिफरेंस है. तो वो वहाँ पर उनका एक ही दिन हुआ है, यहाँ पर हमारी पूरी लाइफ टाइम निकल गई है. देन फिर तो वो जो जैसे कि अभी जैसे मार्केट में, मैं मार्केट वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि मार्केट में बहुत मिलते हैं कि भाई हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं. मतलब कि जैसे कि किसी के भी लव्ड गए होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, तो नो आइडिया कि वो क्या चीज़ है, वो सोल को बुलाने का, है ना? दैट नॉट लाइक इन रियलिटी. हाँ, मतलब सोल से बात करवाने का, सोल से बात करवाने का. थोड़ा बहुत no clue के how that is done. हाँ, कुछ तो वो कैंडल वाला नहीं, कुछ तो आजकल नया सिस्टम चालू हुआ है, कुछ तो कार्ड रीड करके. जैसे हम ज्योतिषी के पास जाते हैं. Alright, we can serve the prasadam as well. प्रभु यहाँ बैठ सकते हैं, यहीं पर ही प्लेट आ गई है ना? And we can keep asking questions. Prasadam will be served. प्रभु जैसे प्रेयर कर लें, पहले प्रेयर कर लेते हैं, then we'll take more questions. Aviraj, can you do the prayer? Aviraj, take the mic. महाप्रसादे, quickly. महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे. नमो ब्राह्मणे वैष्णवे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे. स्वल्प पुण्यवतं राजन् स्वल्प पुण्यवतं राजन्. विश्वासोऽनेव जायते विश्वासोऽनेव जायते. शरीरा विद्या जायते शरीरा विद्या जान. जोड़ेन्द्रियता ही का जोड़ेन्द्रियता ही का. जीवे फैले विषय सागरे सागरे तारा मध्य जीवति मध्य जीवाति. लोभ मोह सुदुर्मति लोभो मोहे सुधर्मति. ताके जेता कठिन संसार ताके जठा कठिन संसारे. कृष्ण वरदोया मोह दोया मोहे. कोरी बारे जीव जाए पूरी बारे जीव जाए. सो प्रसादन दिलो भाई स्व प्रसादनो दिलो भाई. से अमृत पाओ से अमृत पाओ. श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ. प्रेम डाको चैतन्य निताय प्रेमे दाखो चैतन्य निताय. जय निमाय जय निताय जय निमाय जय निताय. जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर. श्री वसादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. श्री भगवत महाप्रसाद की जय. Thank you. Yes, you can give that mic to Prabhu. प्रभु ऐसे बोलते ना पुनर्जन्म हो गया कि हमारे फैमिली में कोई हमारा पूर्वज आ गया है, ये आ गया है. बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं मेरी दादी है, ये है, वो है. मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि जो रिसेंट डेथ हुई है उनको ही बोलते कि आए हैं. सो फिर अगर इतना टाइम उधर लगता है तो मतलब ये तो हमारा केवल बिलीव है, बट फिर भी वो कैसे. That's a good question. कि रीइंकार्नेशन का क्वेश्चन है ना, कि रीइंकार्नेशन कैसे हो जाती है अगर हम वहाँ पर इतना टाइम लगा. It's a good question. I have no idea रीइंकार्नेशन कैसे होती है. बट रीइंकार्नेशन दैट्स ट्रू कि लोग आते हैं, मे बी दे डोंट फॉलो दैट पाथ, राइट? तो वो वाला पाथ हर आदमी वो वाला पाथ फॉलो नहीं करता. कुछ लोग जैसे कुछ लोगों को यमराज लेने आते हैं, कुछ लोगों को विष्णु दूत लेने आते हैं बेस्ड ऑन देयर कर्मा. नहीं, वो सिर्फ जो यमदूत लेने आते हैं वही वेट करते हैं वहाँ पर. जो विष्णु दूत आते हैं दे डायरेक्टली गो टू वैकुंठ.
डायरेक्टली बोल रहे हैं. बट हाँ, दैट डजंट आंसर योर क्वेश्चन कि वो रीइंकार्नेट होके यहाँ पर क्यों आ जाते हैं. नो आइडिया. अगर कर्म अच्छे हुए तो वैकुंठ गए, तो कर्म अच्छे हुए तो स्वर्ग गए, स्वर्ग गए तो मोक्ष हो गया ना. स्वर्ग इज नॉट मोक्ष. स्वर्ग इज नॉट मोक्ष. स्वर्ग में क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि स्वर्ग में क्या है, जितने भी आपने पुण्य किए हैं, पुण्य करके आपने इतने पुण्य कर लिए हैं, अब स्वर्ग में जाके आप खर्च करोगे. वहां पर जाके उर्वशी का डांस देखोगे और इंद्र के साथ बैठ के वो पियोगे, सोमरस पियोगे. हाँ, तो जैसे वहां पर जैसे आपके पुण्य खत्म हुए ना, वहां से आपको आउट. पुण्य खत्म, क्रेडिट कार्ड में जितना था, क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया, जीरो बैलेंस, जाइए वापस कमा के लाइए. अगर दुखालय में आने का रीजन हमारा ये है कि हम लोग क्रेडिट जमा करें. क्रेडिट, हाँ. अब यहाँ पर हम पाप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं. तो पाप का अलग से हमें मिलेगा दंड और पुण्य का अलग से हमें वो दे डोंट नलिफाई. प्लस माइनस इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं हो जाएगा. तो पाप का अलग से मिलेगा, पुण्य का अलग से मिलेगा. जब वो कर्म आएगा तब मेरे, हाँ, कर्म आएगा तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें भी स्वर्ग से ऊपर कुछ परमानेंट होता है जहाँ से वापस. हाँ, सो दैट इज वैकुंठा, दैट इज मोक्ष. व्हेन वो कब आता है, जब आपका ना पुण्य होता है ना पाप होता है. When that comes to zero, that is the whole point कि हमें उसको जीरो करना है. पाप और पुण्य का जो है ना घड़ा, उसको जीरो करना है. जिस दिन वो जीरो हो गया, that day nothing to do with this world. अभी तक कितने पाप हो चुके हैं? अभी तक बचपन से लेके कितने तो पाप हो चुके हैं? पाप बहुत किए हैं. एग्जैक्टली. सो बोलते हैं नाम में इतनी पावर है कि जितने भी आपने पाप किए ना, they burn. पूरा श्लोक है भगवद गीता भागवतम में कि वो जैसे आप सूखी हुई घास में आप आग लगाते हो ना, एकदम से बर्न हो जाते हैं. दिस इज द इतने पाप हम कर नहीं सकते जितना ये जो हरि नाम है इसको रिमूव कर सकता है. बट द प्रॉब्लम इज वी कीप ऑन डूइंग. हम आगे भी करते जा रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं. अगर हम रुक जाए ना करने से तो और आगे नहीं जाएगा. Does that make sense? कभी-कभी ऐसे लगता है कि आपका ये चीज़ ठीक है, पर्सन से पहली बार मिल रहे पर ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं मिली. ऐसा क्यों होता है? कभी-कभी ऐसा लगता है ये चीज़